Okay, hello both of you. Hello Saket Bhai and hello Shreya Bhavi. So Hi. it's nice having you here. So let's start with your introductions. आई एम साकेत. अब मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूँ तो born and brought up in Raipur. Okay. Born into the family which was already inclined towards spirituality and obviously business तो था ही, but ये spiritual inclination भी काफ़ी था. जैसे पहले जो मदर अनीता शाह वो विपश्यना के ट्यूटर थे, Okay. ऑथराइज ट्यूटर. तो पहले अपना वीआईपी रोड में अपना जो स्कूल है अभिभावक विद्यालय, वहाँ पे पहले ये सेंटर था, मेडिटेशन सेंटर था पहले. Okay. तो काफ़ी साल वहाँ मेडिटेशन हुआ है बच्चों का. उसके बाद 2011 में वहाँ पे स्कूल बनी है. फिर तब से ये स्कूल का काम चल रहा है और घर में हमेशा ऐसा माहौल रहा ही है कि कोई ना कोई, जैसे जैसे ए नागराज बाबा जी हैं, उसके पहले राजन महाराज जी थे, तो कोई ना कोई ऐसे व्हाट वुड यू से के अच्छे लोगों का वो शेडो रहा है घर में हमेशा से. तो थोड़ा फिलोसॉफिकल रहा है शुरू से. Nice, वैसा. nice. बहुत अच्छा. हाँ, तो ये सौरभ अभी जीवन विद्या में वो हैं और अभिभावक विद्यालय में क्या भागीदारी टाइम देते हैं. हाँ. You go and teach or maybe I don't go and teach, but yes, you're involved somehow. हाँ, we are involved somehow. Somehow. Nice, great. हाँ, तो yeah, that's it, pretty much it. Okay, great. मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता कि इंट्रोडक्शन आप जब आप देने बोलते हो Okay. तो व्हाट टू से, मतलब बिजनेस के बारे में बताऊं Yeah. या फैमिली लाइन बताऊं या क्या बोलूं, या जैसे कोई ऐसे पॉइंट ब्लैंक पूछ ले कि साकेत कौन है, Yeah, तो yeah. आई डोंट नो व्हाट टू से. Yeah, true that. Because हाँ, एक human के multiple angles और multiple Right. identities है. So Right. कौन सा identity? If you detach my surname from my name, Yeah. then who is Saket if you ask me point blank? So there are very many fragments of Saket which I want to tell you, but from where to start and where to go, I don't know that. Definitely. तो I get it. हाँ, it's like that. ठीक है. That's fine. But आपने अच्छे से रखा. And now over to you. आपके बारे में. आप मेरा नाम बता ही चुके हो, श्रेया, and I'm married to Saket and born and brought up in Raipur. Basically, right now I'm a teacher at Abhivavak Vidyalaya and I have 2 kids. One is Kabir and the other is Kanav. And that's it. Okay, great. And, So you are wonderful parents as well then. You have wonderful kids. I am. Okay. Okay, nice. So and coming to that, मतलब because you said that you are a wonderful parent. So the one of the most prevalent topics today are parenting actually. Yes. एक तो there's a phase where people are thinking about marriage की शादी करनी की नहीं करनी है. True. But even if they come through it and they are like कि चलो कर लेते हैं. And then the next part is kids and parenting. So Right. and people are facing many issues and a lot of confusion in parenting because हमारे पेरेंट्स के टाइम में हमारे पेरेंट्स बहुत इतना सोच के एनालाइज करके हमको नहीं पढ़ाते थे या ग्रो अप करते थे. वी ग्रू अप बेस्ड ऑन हाउ अदर्स वर ग्रोइंग अप. नाउ स्पेशली द कॉन्शियस पेरेंट्स वो हर एक चीज़ को डीपली सोचते हैं. बट दैट इज ऑल्सो टैक्सिंग ऑन द पेरेंट्स एंड दे जस्ट डोंट नो व्हाट इज राइट. मतलब आप इंस्टा में जाएंगे, देयर आर सो मेनी पेरेंट इन्फ्लुएंस. कोई बोलता है ऐसा करो बच्चों को, ये करो ऐसे स्कूल में, कोई मॉन्टेसरी स्कूल तो कोई मेन स्ट्रीम तो कोई होम स्कूल, कोई गुरुकुल. यू डोंट नो. सो दैट पेरेंटिंग हैज बिकम a big question mark. Big question mark. And parents are genuinely confused today. So I would like to know कि how you both have tried to resolve that and what आपने कौन सी चीज़ को priority दिया है अपने बच्चों के parenting के लिए. See, I'll not say कि we have perfected parenting, but I'll just say कि the way you started saying that parenting is confusing and parents are confused, I would say parenting is not confusing and parents are not confused. Every individual in itself is confused. Got it. अब उसके ऊपर आप पेरेंटिंग का लेबल लगा दो, उसके ऊपर आप फादर का लेबल लगा दो, सन का लेबल लगा दो, ब्रदर का लेबल लगा दो, वो सब कंफ्यूजन वहीं रहेगा क्योंकि सोल में कंफ्यूजन है. Correct. पेरेंटिंग इज नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग. पेरेंटिंग इज वेरी सिंपल. Okay. और वो जो अभी जो सेकेंड थॉट्स अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, चलो अभी के बाद अपन मैरिज को छोड़ देते हैं. जो मैरिज कर लिए, सेकेंड थॉट्स अबाउट हैविंग चिल्ड्रन और हैविंग 2 चिल्ड्रन. तो वी हैव 2 चिल्ड्रन एंड वी couldn't be happier than this. Like we see happiness growing every day. और एक्चुअली पेरेंटिंग बिल्कुल कंफ्यूजिंग या कुछ भी डरावना जैसा नहीं लगता है मेरे को. Okay. वो खुद की इनसिक्योरिटीज है जो अपन सामने डाल देते हैं. वो पेरेंटिंग वाले
जो अपना रिलेशन है, जो डायनामिक है, उसमें डाल देते हैं खुद की इनसिक्योरिटी, तब वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, तब वो डरावना हो जाता है. करेक्ट. बट अदरवाइज इट इज वेरी ब्यूटीफुल. इट डजंट, द रिलेशन इन इटसेल्फ डजंट डिमांड एनीथिंग बट टाइम, नाइस. नथिंग एल्स. एक जैसे अगर कबीर है, कबीर इज 8 years old, तो ही इज 8 years old नाउ. अब 8 साल में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया है कि जिसमें मेरे को लगे कि आई हैव टू बी परफेक्ट विथ हिम. करेक्ट. उसने कभी ऐसा डिमांड नहीं किया है. आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ विथ हिम, शी जस्ट हैज टू बी माई हर सेल्फ विथ हिम, दैट्स इट. और इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी. वो हाइप बहुत ज़्यादा हो गया है अब, क्योंकि मेरे को लगता है वो बाहर से पता नहीं क्यों ऐसा, क्योंकि अपन पहले देखते हैं, अपन जैसे अपने पेरेंट्स के टाइम पे देख लीजिए, या तो आई वुड से आप अभी भी देख लीजिए, जैसे अपन एक बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, तो अपने स्टाफ भी रहते हैं, जो हेल्पर्स रहते हैं अपने, उनके यहाँ आप देखोगे 3-3, 4-4 बच्चे रहते हैं, दे आर वेरी हैप्पी. आप उनके अंदर वैसी इनसिक्योरिटी है कि नहीं, वो रो रहे हैं कि 4 बच्चे हो गए, हम क्या करेंगे, वो उतने ही मजे में है. हम उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, और हमारे 2 बच्चे होते तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग चालू हो जाती कि हम क्या करने वाले हैं. करेक्ट. और कुछ फ्रेंड से बात होती है तो बोलते हैं नहीं 2 नहीं करने के, फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाएगी. यस. तो आई डोंट नो व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. That's the insecurity that you are imposing on the relationship, which is supposed to be a very beautiful one in your life. Okay, so that's a valid point, क्योंकि as at least outwardly तो दिखता है कि at least जो staff है, जिनके economically जो थोड़े से उतने privilege नहीं है, but then they are happier. But again मतलब we can take it up one by one. Right. So हाँ जी sure. इसमें जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि जो बच्चे क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, या ये जो भी थॉट प्रोसेस है, एक तो इसमें मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगती है जो मैं सुनी भी थी, एंड ऑल्सो आई फील कि मतलब एक पर्सन अपनी ग्रोथ देखता कहाँ पे है ना. मैं साकेत को भी ये बहुत बार पहले भी बोली हूँ कि जब हम एक फैमिली में रहते हैं, मैं और साकेत शादी की है, एंड देन व्हाट, जस्ट पार्टी, लिव विद द फैमिली एंड दैट्स इट. घूमो फिरो, मौज करो, मस्ती करो. दैट्स द एक पॉइंट आता है जब आप एकदम स्टैटिक हो जाते लाइफ में कि इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट. यस. आई थिंक जब आप एक जिम्मेदारी लेते हो किसी को बड़े करने की, संभालने की, तब आप खुद की ग्रोथ भी नोटिस करते हो, और साथ में जो आप जिम्मेदारी ली हो उनके साथ का अफेक्शन, उनकी केयर, दैट इज वेयर आई फील कि मैं अपने पहले फेज को देखूं और अभी देखूं तो आई कैन क्लियरली सी द डिफरेंस दैट हाउ गुड मदर आई एम एंड हाउ वाज आई बिफोर. तो वो डिफरेंस आप जब बच्चा करते हो तब फील कर पाते हो. ओके, मेक सेंस. आई मीन आपका बहुत ही पॉजिटिव आई थिंक एक्सपीरियंस रहा है विथ पेरेंटिंग एंड चाइल्ड, बट आई थिंक व्हेन वी आर एड्रेसिंग अ लार्जर सेट ऑफ ऑडियंस, तो उसमें फिर एक बड़ा नंबर ये भी है जो जिनके एक्सपीरियंसेस वैसे नहीं है जैसे आपके हैं. तो उस केस में जैसे जो आपने बोला इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आप हर रोज हैप्पीनेस आपकी ऐड हो रही है, तो हाउ वुड यू एडवाइस और मे बी गिव some maybe you know lived experience of your own जो कि आप इन बाकी लोग को दे पाए ताकि वो भी उससे कुछ सीख पाए एंड अपनी लाइफ में लाए. बिकॉज नॉट एवरीवन, जैसे आपने बोला मे बी फाइनेंशियल प्लानिंग आप उतना बर्डन नहीं लेते हो, बट फॉर मेनी पीपल इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम टू अफोर्ड गुड स्कूल्स. मतलब हमारे कंट्री में स्पेशली इफ यू हैव good private schools or just government schools, there's nothing in between. अब जैसा वो disparity wealth का बढ़ रहा है and जो schools के fees बढ़ रहे हैं, आपके पास option नहीं either for go to this government school or you do home schooling. And then कहीं ना कहीं वो हमारे status से जुड़ता है. Like it looks like आप बहुत चीज़ों में resolved है, but for many people आप उनका status, उनके peer pressure of family and what not, it's there. तो इस case में then how do these people actually you know टेक एडवाइस और मे बी आपसे कुछ टेंजिबली सीख पाए कि हम कैसे फिर इस चीज़ को देख पाए. बिकॉज इकोनॉमिक रियलिटी इज़ अ रियलिटी. जो आपने एग्जांपल दिया 3-4 बच्चे के होने का, वो खुश हैं. इट कैन अदर वे टू लुक एट इट, मैं उसको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट अदर वे टू लुक एट इट इज कि वो इग्नोरेंस इज ब्लिस फॉर देम राइट नाउ. वो शायद उन प्रॉब्लम्स को इमेजिन ही अभी नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, जो शायद आप या मैं देख पा रहे हैं एंड पहले से प्लान कर रहे हैं. उनको वो शायद तब खटकेगा, तब होगा जब वो प्रॉब्लम ज्वलंत मुद्दा बन के आएगा. सो दैट्स आल्सो देयर. या इसमें 2-3 बातें हैं. मतलब आप ऑब्वियसली मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फैक्टर मैटर करता है जब तक आपके पास बेसिक नीड्स फुलफिल्ड है. उसके बाद आप ये जिम्मेदारी लो, अग्री. उसके पहले आप ये जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो अपनी समझदारी के साथ अपन जाएं. मतलब हम पूरा ये सोच के समझ के फिर डिसीजन लें, इट्स अ बेटर आइडिया. ओके.
सेकेंडली जो बच्चा संभालने वाली बात है कि कई लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क है. अगर इसमें 2-3 चीज़ें क्लियर होना जो मैं विद्यालय में सुन रही हूँ अभी फ़िलहाल, कि बच्चे सही कार्य व्यवहार करना चाहते हैं, सत्यवक्ता होते हैं, ये 2-3 ऐसे और पॉइंट्स हैं. न्याय के याचक होते हैं. न्याय के याचक होते हैं. तो इफ़ यू सी देम, वो बाय बर्थ ही अपने नेचर में है. हम अदर चीज़ें उनके अंदर डाल रहे हैं कि हम कभी बोल रहे हैं कि आप दादी जी को ये नहीं बताना कि हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे या हम ऐसा कर रहे थे. तो ये वाली चीज़ें हैं. आई थिंक वो बच्चों के साथ बैरियर्स अपन डालते जा रहे हैं कि नहीं आप ऐसा रहो, आप ये मत करो. हम कबीर और कनव को इसलिए इतना इजीली बड़ा कर पा रहे हैं मेरे ख्याल से क्योंकि वो एनवायरनमेंट उनको मिल गया शुरू से कि आपको खुला गार्डन है, आपको जैसा खेलना है खेलो. विद्यालय में भी उनको वैसा ही एनवायरनमेंट मिला है, प्लस फैमिली में भी, मतलब मम्मी हो, घर में जो चाचा चाची हैं, सबके साथ ही वैसा फ्रीडम है. तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा समझदारी पार्ट तो जुड़ा हुआ है. सो बेसिकली जब आप व्हेन यू से समझदारी, तो अ लॉट ऑफ द ऑडियंस फील कि यार हम तो समझदार हैं ही, वो नहीं समझना चाह रहा. मतलब the clashes come. Same is with husband and wife relation. So when आप जब इस लेवल पर पहुंचे and when आप समझदारी बात करते तो how does that look like? जब आप बोल रहे हैं कि आपके फैमिली में कोहेरेंस है, मतलब आपके बच्चे को आपके पास एक फेस और आपके अदर फैमिली मेंबर्स का एक फेस नहीं रखना पड़ता, एंड इवन यू आर कंफर्टेबल कि नहीं बच्चा खुले रहे, आप भी खुले रहो, एंड वो जहाँ भी जा रहा है अपने फैमिली में in the house and outside वो कुछ अच्छा ही सीख के आ रहा है, and even in the school. So वो level of resolve and that level of confidence वो कैसे, can you throw some light on that? I would give entire credit to the upbringing and to the atmosphere that I am in right now. Okay. तो बेसिकली आप जो मेरे को ये लगता है हर चीज का रूट अभी जो प्रॉब्लम हो रखा है ना, वो स्टेटस को हो रखा है. Okay. क्योंकि हर हिसाब से अपन कहीं ना कहीं फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं. Correct. तो when we try to fit in, we want our children to fit in as well. Yes. Definitely. And they don't want to fit in. They don't want to. Yes. They just want to be. Be. True. हाँ. आप जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे आप अब जैसे कबीर है, मैं उसके लिए कोई बहुत ब्रांडेड और बहुत कोई महंगा कपड़ा लेके आ गया, ठीक है. अब वो उसको पहन के घूम रहा है, अब वो शादी में गया है. Correct. अब वो खा रहा है अपना, उसके ऊपर गिरा रहा है कुछ, तो क्या पूरे टाइम नजर रहेगी उसके ऊपर कि खराब मत करना, गंदा मत करना. मैं उसको व्हाइट और व्हाइट पहना दिया हूँ, अच्छा, विच इज वेरी कॉस्टली. तो पूरे टाइम मेरे दिमाग में रहेगा यार तू ये खराब मत करना, ये खराब मत. तो वो तो बच्चा है यार, मैं उसके ऊपर बेसिकली मैं जुल्म कर रहा हूँ उसके ऊपर, ये बोल के कि वो ये मत करना, वो मत करना. You are not letting him be. आई एम नॉट लेटिंग हिम बी. आई एम इन द स्टेटस को कि मेरे को मेंटेन भी करना है कि मैंने ये ब्रांड पहनाया अपने बच्चे को, लेकिन अंदर से मेरे को डर है कि वो खराब नहीं हो जाए यार, वो इतना महंगा है, ये है वो है. तो ये हर छोटी चीज में ये चीज अप्लाई होती है मेरे को लगता है कि आप वो आपके लाइफ में भी है साथ में, कि आप जैसे अभी हम फार्म शिफ्ट हो रखे हैं. जैसे हमारा घर समता कॉलोनी में है. Correct. अभी रिसेंटली हम फार्म में रह रहे हैं. Okay. तो मैं ये फर्क देखता हूँ. जैसे फार्म में क्या है ना, फार्म 30 साल पुराना फार्म बना हुआ है, वहाँ पे वो 2 रूम हॉल किचन का एक वो जो 30 साल पहले जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वही बना हुआ है, और वहीं पे हम रह रहे हैं. एंड आई फाइंड इट सो सूदिंग एंड माई लाइफ हैज बिकम सो ईजी, क्योंकि कुछ मेंटेन करने का वही नहीं है. मतलब वो जैसा है वैसा है. अब उसमें कबीर सुबह उठ के वो पूरे पेन से पूरे दीवार में अगर गोद रहा है तो आई डोंट माइंड दैट. अब वहीं अगर कोई एकदम प्रॉपर वेल फर्निश्ड 5 स्टार जैसा घर रहे, तो हर एक चीज में मैं कबीर को टोकूंगा, कनम को टोकूंगा कि इसको मत हिलाना, यहाँ से ये गिर जाएगा, ये टूट जाएगा, इसको तो यहाँ पे दीवार में ये मत करना, वो टेक्सचर पेंट हो रखा है. तो ये सब इनवाइटेड प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली. And our life revolves around invited problems. And when our life revolves around them, तो अपन पूरे ना frustrated रहते हैं. Yes. और frustration हमेशा power wise descending order में निकलता है. Always. सबसे powerful है वो. हाँ. तो अगर मैं powerful relation में, तो मेरा श्रेया के ऊपर निकलेगा. I said अगर, क्योंकि मैं नहीं हूँ. ठीक है. तो वैसे अगर एक्चुअली तो पहले भूल जा फिर. तो जैसे श्रेया का मेरे ऊपर निकलता है, मेरा बच्चों के ऊपर निकलेगा. तो जब फ्रस्ट्रेशन है तो कहीं ना कहीं तो जगह ढूंढेगा ना निकलने, तो बच्चों पे निकलेगा. और फ्रस्ट्रेशन आपके बनाए हुए हैं, और वो निकलते हमेशा बच्चों के ऊपर है. हाँ. तो बेसिकली मतलब अपन खुद अपनी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हैं. और एक तो ये इंस्टा वर्ल्ड जो आ गया है, विच आई एब्सोल्युटली हेट, क्योंकि वो लाइफ को इतना इजी बताता है. It is easy, but not in the sense which it portrays. Yeah, superficial. Superficially easy है वो. Yes. Like मतलब जैसे कितने ब्लॉगर्स हैं, कितने वो जो सोलो ट्रिप जा रहे हैं,
or they are boasting their solo trip by putting their solo trip experiences on Insta. Yeah, That is not a solo trip. that's not solo. You want people to You see want you people and, to know what you're acknowledge. doing at every point of time. It is not a solo trip. yeah, definitely. Solo trip is all about yourself, That's true. what you have felt, what you are feeling, and it's only about you. Definitely. It's not from the angle what people perceive how you are Perceive. feeling right now. It is not solo. Solo. So and मतलब एक आपने बहुत अच्छी पॉइंट बोली एनवायरनमेंट मतलब आई व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि एनवायरनमेंट जो है आपका बिकॉज यू गॉट अ गुड एनवायरनमेंट एंड Right. आपने अपने बच्चों को वैसा एनवायरनमेंट दिया सो दैट ऑटोमेटिकली इज ब्लूमिंग फ्लावर्स मतलब जैसे होता है ना कि जब एक गार्डन में अच्छा फूल या अच्छे पेड़ पौधे का अगर हमको ब्लूम चाहिए तो हम पेड़ पौधे में कुछ जाके कुछ करते नहीं हम सॉइल हम सनलाइट वाटर Right. को देखते हैं एंड Right. दैट्स हाउ इट यू आर Right. मेकिंग श्योर दैट्स अ वंडरफुल थिंग जो आपने ध्यान दिलाया नाउ वी मूव टूवर्ड्स द सोसाइटल लेवल नाउ इतना तो मुझे क्लियर है कि आपने अपने घर पे एंड अपने स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा किया बट इवेंचुअली योर किड्स आर गोना गो टू द मेन स्ट्रीम मतलब वो कॉलेज जाएंगे वो आप कहीं जॉब बिजनेस आई डोंट नो इट्स ऑन देम सो उस पॉइंट पे तो यू सी व्हाट्स हैपनिंग इट्स कट थ्रोट कंपटीशन It is. एंड एआई आ गया है एंड हाँ. व्हाट नॉट आई मीन फ्रेंडशिप पीपल आर फेसिंग लोनलीनेस एपिडेमिक्स एंड बहुत तमाम चीज़ हो रही है तो अभी पेरेंट्स आर ऑल्सो बिट आई से अफ्रेड एंड अ बिट पैरानॉइड अबाउट द किड्स उस सेंस में कि यार समाज अभी ठीक नहीं है और बच्चा समाज में जाएगा तो वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन एंड इवन द किड्स डोंट नो लाइक एक पॉइंट पे मैं बोलूँगा फिर भी ना आवर पेरेंट्स और मे बी आवर पेरेंट्स साइन देम अप फॉर स्टेबिलिटी मतलब बड़ा होगा मतलब इस एज तक पढ़ाई करेगा कॉलेज फिर ये गवर्नमेंट जॉब हो वॉट एवर शादी बच्चे इट वॉज वेरी सेट अभी वी आर लिविंग इन अ वेरी डायनेमिक सोसाइटी सो आप उसको कैसे देखते हैं अपने पेरेंटिंग के एंगल से मैं बोलूं पावर Power always. नो प्लीज गो अहेड तो इसमें चालू मेरा सारा थॉट प्रोसेस जितना अभी ड्रिवन है इट्स ऑल फ्रॉम विद्यालय ओनली ओके तो विद्यालय में ये बात बार बार बोली भी जाती है कि बच्चे को अप टिल 5th स्टैंडर्ड मतलब जब तक वो 12 साल के होते हैं 11 साल के हाँ 12 साल के होते हैं तब तक 12 साल राइट 12 साल के होते हैं तब तक उनको सही की इन्फॉर्मेशन दी जाए ओके सही की इन्फॉर्मेशन मतलब हमें कैसा आहार करना है कैसे कपड़े पहनने हैं किन के साथ कैसा संबोधन रखना है कैसे जीना है जब आप सही की इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट कर देते हो देन यू गिव देम सही और गलत वाला Okay. एक्सपोजर आप घर पर ऑब्वियसली अभी लोग वैसा नहीं जी रहे हैं पर एक अगर ये पॉडकास्ट जैसा है जिसमें हम ये भेज सकते हैं और लोग सुने श्योर श्योर तो उसमें आप जब बच्चे को ये बताते हो कि आप मैगी खाओ एक लिमिट तक खाओ पर मैगी के अलावा आप अच्छी चीज़ें भी खाओ ताकि आपका शरीर स्वस्थ भी बना रहे और आपको स्वाद थोड़ा बहुत अगर उसमें आ रहा है तो वो भी फुलफिल हो जाए तो आप सही की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मेजर है कि आपका स्वास्थ्य रहे ठीक है उसके बाद धीरे धीरे आप उनको दोनों वर्ल्ड्स दिखाओ कि ये भी ऐसा है और ये भी ऐसा है करेक्ट बच्चे को जब पूरी सही इन्फॉर्मेशन मिली हुई रहती है ना तो वो जज कर पाता है कि मेरे को ये चीज करनी है या नहीं करनी है ओके एंड देन दे आर एबल टू आई थिंक मेरे को शादी भी करनी है या नहीं करनी है वो भी बच्चा सही गलत में चूज कर पाता है मैं फ्रीली जीना चाहता हूँ मैं इंडिपेंडेंस किस चीज को मान रहा हूँ स्वतंत्रता मेरे लिए है क्या करेक्ट तो अगर उस एंगल को वो पहले ही समझ ले और उसके बाद अपनी लाइफ जीने जाए तो आई थिंक काफी सिंपल हो जाएगा उनके लिए दैट्स वंडरफुल सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि आप जो विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं इट इज नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द आई डोंट नो सीबीएसई एंड आईसीएसई वाला पार्ट बट कुछ और भी काम बच्चों पे हो रहा है विच इज एनेबलिंग देम टू grow to that level because अभी somewhere we have identified कि mainstream education grades अच्छे और अच्छे college अच्छे jobs दिला पा रहा है but ये जो आपने अभी बात की है वहाँ पर we are falling short so it's quite wonderful very short I guess very short yeah I mean we have seen IITians and even top achievers failing in their relationships their marriages and facing loneliness mental health issues but if आप जैसा बोल रहे हैं this does not mean that you should not go for the of mainstream course, education of course but the core should be balanced एंड ऑल्सो अगर आप नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ा रहे हो ना पेरेंट्स को भी अगर ये क्लियर रहे ना कि मेरे को बच्चे को देना क्या है बच्चे के साथ सबसे जरूरी है संवाद Yep. आप उनको पूरे टाइम ये बात बोल के बताओ yeah नॉट नेसेसरी वो बच्चा अगर ABCD पढ़ के आया ना वो Yeah. कुछ भी पढ़ के आया घर पर आके वो सबसे पहले मम्मी जी पापा जी को देखता है और उन्हीं से ही सीख रहा है correct तो आप बताओ उनको कि ये चीज जरूरी है ये सही है आप
जब तक पेरेंट की तरफ से वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती ना, बच्चा टीचर को ही सब माना हुआ है और उन्हीं की बात मान रहा है। Yep. तो वो जरूरी है कि पेरेंट संवाद भी करे बच्चों से, उतना कम्युनिकेशन भी बना के रखे, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ पे इनपुट इतना ज्यादा है, yes. यू कैन नॉट कंट्रोल द इनपुट। yes. जैसे हमारी फ्रेंड्स की जब बात होती है तब बात यही होती है कि एक तो आप जो बोले कि कोई ऐसे स्कूल में अगर बच्चा पढ़ेगा या इस एनवायरनमेंट में रहेगा तो बाहर जाके जब ही फेस द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तब क्या रहेगा। एक तो वो बात हो गई, और एक बात ये हुई कि यू कैन नॉट सेफगार्ड योर चाइल्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ, क्योंकि इनपुट बहुत है उसके पास। Correct. तो आप करो क्या उसमें? आपके पास एक ही सॉल्यूशन है खाली इस चीज का, जो मेरे को लगता है वो कम्युनिकेशन है, ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन खुद की तरफ से भी और उसकी तरफ से भी ऐसा स्पेस देना कि ओपन कम्युनिकेशन कर पाए। ट्रू दैट। हाँ। क्योंकि हम जब बोलते तो हम पेरेंट एज अ पेरेंट थोड़ा डायरेक्टिव वे में बोलते हैं, और वो भी अपन उतना ही एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं जितना अपना ढांचा इवॉल्व है। या बच्चा कुछ ऐसा बोल दे, अगर आज जैसे 8 साल का बच्चा है वो कल 10 साल का होगा, वो आके मेरे को रैंडमली इफ ही टॉक्स अबाउट सेक्स, तो उसके बाद क्या होगा? आई विल बी आंसरलेस टू दैट। आई डोंट वांट टू बी आंसरलेस टू दैट। मैं उसको ये नहीं बोल सकता अब कि अभी आप छोटे हो इस चीज के लिए, तो अपन 5 साल बाद इस चीज के लिए बात करेंगे। क्योंकि उसका जो क्यूरियोसिटी है वो तो इंसेमिनेट हो गया। अब अगर मेरे से वो बात नहीं करती, पेरेंट्स आर चिल्ड्रंस फर्स्ट लव। करेक्ट। कुछ भी होता है दे वांट टू रन टू यू एंड टेल इट टू यू। वो आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपकी भाव भंगिमा को, आपके रिस्पॉन्सेज को वो तुरंत जज करते हैं, उससे वो एनालाइज करते हैं कि अब इनको क्या बताना है क्या नहीं बताना है। करेक्ट। तो जहां वो चीज आती है ना, तो फिर आप धीरे धीरे कट ऑफ होने लगते हैं। और जब आप कट ऑफ होगे उनकी लाइफ से, तो उनकी लाइफ में कौन बचेंगे? उनके फ्रेंड्स जो उनकी एज के हु आर क्लूलेस। तो बेसिकली तो जब वो अपनी एज वालों से बात करेंगे तो उनको वैसे इनपुट मिलेगा जो जिनके पास खुद का कोई इनपुट है नहीं बहुत ज्यादा। करेक्ट। हम खाली इतना ओपन एटमॉस्फेयर घर पे रख लें कि बच्चा हर चीज आके आपको बता पाए चाहे कुछ भी हो। एंड आप उसको सुन पाओ। हाँ, और कई बार ऐसा रहता है कि अपन एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ दादा दादी हैं, पापा मम्मी हैं, ताऊजी ताई जी हैं, बड़े पापा बड़े मम्मी हैं, तो बच्चा कई बार ऐसी बात कर देता है। तो बीइंग अ पेरेंट आपको लगता है कि दादा दादी के सामने ये बात नहीं होनी चाहिए। तो आप उसको भी, क्योंकि बच्चे इतनी छोटी छोटी चीजों को लेते हैं ना अपने अंदर, तो जैसे कई बार हो सकता है कि दादी चिल्ला दे या दादा चिल्ला दे उस बात पे कि ये क्या बात कर रहे हो आप, पर आपको पता है कि वो बच्चा गलत बात नहीं कर रहा है, मतलब उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी है वो। तो उस चीज को भी, उतनी छोटी चीज को भी उसको एड्रेस करना पड़ेगा कि दादा दादी चिल्ला दिए, ठीक है, पर आप गलत नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। उसको इस लेवल पे नहीं जाना है कि वो उनसे मतलब वो बदतमीजी पे उतरे उनसे, पर उनका रिस्पेक्ट रखते हुए आपको बच्चे को ये समझाना पड़ेगा कि आप भी गलत नहीं थे, आपके मन में क्वेश्चन आया तो। करेक्ट। लेकिन आप थोड़ा सा ये समझ लो कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है या कुछ है तो आप हमसे भी पूछ सकते हो, खाली दादा दादी को अच्छा नहीं लग रहा है तो। डेफिनेटली। तो बेसिकली उसके हर एक क्यूरियोसिटी का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। करेक्ट। जब वो होगा ना, और एक्नॉलेजमेंट कब होगा? जब आपके पास भी कोई आंसर सही है देने के लिए। ट्रू। ये भले अपन कितना भी इम्प्रॉम्प्टू बोले, इम्प्रॉम्प्टू वर्ल्ड दैट इंस्टा इज क्रिएटिंग कि वन लाइफ लिव इट एंड योलो, हाँ उस टाइप का। तो आपको रेडी होना पड़ेगा, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी रिएक्टिव टुडे विथ योर किड्स। मेरे को रेडी होना पड़ेगा कि अगर कल को मेरा बच्चा के कोई एकदम ऑकवर्ड टॉपिक पे बात करता है जो मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड था कि वो स्टेज पे बात करे, एक तो ये अब ऐसा कुछ रहा नहीं कि एज वाइज कि 8 साल पे ये बात नहीं हो सकती या 15 साल पे ये बात होगी। आई हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम, एंड व्हेन आई विल बी रेडी ना, तो वो जो कामनेस है ना वो जाएगी आंसर में। एक तो होती है दिखाने वाली कामनेस जो अपन बच्चे को दिखा देते हैं, वो भी उन तक जाती है बिकॉज एनर्जी डजंट लाई। एनर्जी इज कंटेजियस। तो मैं कितना भी कूल एक्ट करके मैं उसको थोड़ा एनार्की दिखा दूं तो दैट विल नॉट वर्क। आई हैव टू बी काम फ्रॉम इनसाइड। आई शुड नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर दैट आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ग्रेट, वंडरफुल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक प्रैक्टिस एक टीचर है हमारे विद्यालय में, वो करते हैं अपने बच्चों के साथ कि वो जब रिप्लाई किया अपने आंसर को, उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो उस क्वेश्चन को भी वो नोट करते हैं, वो कई बार आंसर्स भी नोट करते हैं, एंड देन शी थिंक्स अबाउट इट। कई बार हम क्वेश्चन सुन के भूल भी जाते हैं, तो इसका मैं और क्या अच्छा जवाब दे सकती थी या मैं इस पर और क्या सोच के बोल सकती थी, वो इसको फिर वापस से बच्चे से संवाद करते हैं। सो शी टॉक्स अबाउट इट अगेन। और बच्चे का वो डाउट, जब तक उनको ये नहीं लगता ना कि इस उम्र तक में उसको इतना मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक शी प्रैक्टिस।
तो आई थिंक ये बहुत अच्छी हैबिट है उनकी जो वो कर पाती है. तो दैट आल्सो शोज कि एजुकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. मतलब यहाँ एडल्ट्स भी सीख रहे हैं. मतलब ये नहीं कि हम वी आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट सीखना ही मॉडल. पड़ेगा आपको. हाँ, मतलब एक अभी जो प्रचलित में ऐसा है ना मोडस ऑपरेंडी जो है मोडस अभी. ऑपरेंडी ऐसा है कि भाई मुझे पता है सब, अब मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही सुनना है. बट व्हेन and we know where the world is going with Exactly. that, where the relationships are going with that that way attitude. exactly. But now अब ये एग्जांपल है कि इवन द एडल्ट इज क्रॉस चेकिंग देमसेल्व्स. वो आप खुद को देख रहे हैं, उनकी नॉलेज कम. You have to, there's no other way out for you. there's no other way. आपको कांस्टेंट, और ये किसी भी चीज में, मतलब एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज में बस 3 महीने का फर्क होता है. उसके बाद पूरा प्यार उड़ जाता है. अच्छा. उसके बाद खाली अंडरस्टैंडिंग बचती है. अंडरस्टैंडिंग बचती है. मेक सेंस. जब तो आपको अंडरस्टैंडिंग को कॉन्स्टेंटली ग्रो करना पड़ेगा. डेफिनेटली. तो आप जब तक कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज में अपने आप को बेटर नहीं करोगे तो यू लूज एट दैट. चाहे वो कोई भी चीज हो. तो फिर वो, और सबसे मतलब द सैडेस्ट पार्ट इज द दैट पेरेंटिंग नॉर्मली वी टेक एज अ वेरी ग्रांटेड थिंग. मतलब वो बच्चे के शुरू के जो 8-10 साल होते हैं वो तो अपन बहुत ही वो ओले ले लो एक उसी में निकल जाते हैं पूरे. जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट. अगर 10-15 साल तक अपन उनकी हर छोटी क्यूरियोसिटी को एड्रेस कर लें तो उनका कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. अपन सोचते हैं कि 15 साल बाद ये लोग जब मैच्योर क्वेश्चंस करेंगे तब अपन आंसर देंगे, तब वो लेने के उसमें नहीं रहेंगे. वो आपसे क्यों सुनूं, मैं तो फ्रेंड्स के पास फिर है दुनिया करने के लिए. एंड देयर इज अ कोट वेयर आई रेड समवेयर कि इट सेज कि इट्स इजियर टू रेज स्ट्रांग चिल्ड्रन देन टू फिक्स ब्रोकन मेन. मतलब एक एज के बाद आई मीन या 20-25 के बाद पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड इवन देन लाइफ निकल जाती है, नहीं हो पाता कुछ भी. फिर आप कुछ भी करते रहो उसके बाद खाली बैंडेड है वो सब, बैंडेड से कुछ काम नहीं आता. करेक्ट. सो वंडरफुल. एंड इससे एक और चीज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि फाइनली फिर पेरेंट्स को अपने ऊपर काम करते रहना है एंड एज एन आउटपुट बच्चा एंड द एनवायरनमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा. यू डोंट हैव टू, इट्स अ बाय प्रोडक्ट. इट्स अ बाय प्रोडक्ट. आप पहले पेरेंटिंग पे करो, फिर किस इस पे करो, उस पे करो, रादर देन आप अपने ऊपर and that goes for everything. आपको अल्टीमेटली अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है. डेफिनेटली. आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशन बाय प्रोडक्ट है, आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन बाय प्रोडक्ट है, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन बाय प्रोडक्ट है. अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो तब आप इन बाय प्रोडक्ट जो फेल हो रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान देते हो और पिन पॉइंट करते हो कि ये हाँ ये गलत था, यहाँ वो गलत था, इसके चलते ये हो गया. लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करते हो तब यू नो हाउ व्हाट द स्ट्रगल इज ऑफ evolution. तो you know everyone is going through that. तो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स को. You respect everyone's situation in life. Makes sense. That's wonderful. आप कुछ बोल रहे थे. And I also feel कि मतलब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन है गुड एजुकेशन. गुड एजुकेशन मतलब बच्चों को अगर सही शिक्षा दी जाए सही तरीके से तो बच्चे शायद ये चीज़ें जो अभी फेस कर रहे हैं वो नहीं फेस करेंगे. अब इसमें जो मैं पूरा डिटेल में बता देती हूँ एक बार कि क्या एक्चुअल शिक्षा हम सुन रहे हैं. तो उसमें ये है कि पहले बच्चों को मम्मी जी के बारे में बताते हैं. जब बच्चा नर्सरी में आया तो हम सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी के ही बारे में बात करते हैं उनसे. पूरा साल भर मम्मी जी आपको नहलाई, मम्मी जी आपको तैयार की, मम्मी जी आपके लिए खाना बनाई, सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी. जो पोएम्स भी डिजाइंड है वो ऐसे ही डिजाइंड है कि उसमें पूरा माँ ने आपके लिए क्या क्या किया वो उन तक जाता है और वही पोएम को बार बार बात करते हैं और संवाद भी वैसे ही होता है. अब सेकेंड स्टेज PP1 में वी टॉक अबाउट मम्मी जी एंड पापा जी. तो ये दोनों आ गए. पापा जी और मम्मी जी आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं उसकी पूरी बातें होती है. मतलब इनफैक्ट अगर बच्चा दौड़ के भी, एक पोएम है आई कैन वॉक आई कैन रन, तो आप दौड़ के कहाँ जाते हो तो मम्मी जी पापा जी के पास. तो उनकी हर बात पे ये ध्यान दिलाना कि मम्मी पापा हैं. मेरे रहने का रीजन ही वही है. मेरे तैयार होने का भी रीजन मम्मी पापा हैं. मैं तैयार भी कैसे हुआ, मैं चलना कैसे सीखा तो मम्मी पापा सिखाए मेरे को. देन कम्स मम्मी जी पापा जी भाई जी बहन जी. उसके बाद ये PP2 की बात कर रही हूँ मैं. एंड देन इट कम्स क्लास 1 में हम बाकी पूरे सदस्य आ जाते हैं परिवार के. दादाजी दादी जी, चाचा जी चाची जी, नाना जी नानी जी, मामा, ये सब जितना अपना एक्सटेंडेड फैमिली है. सो ये पूरी फैमिली के बारे में फिर बातें होती है. अब इसमें साथी सहयोगी भी जुड़ जाते हैं जो हमारे हेल्प कर रहे हैं. अब इसमें बच्चों का ना सिर्फ ध्यान दिलाना होता है. काम तो चल ही रहा है. आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मैं बैठी हूँ, उसके पीछे इतने सारे लोग काम किए हैं तब मैं यहाँ बैठी हूँ. तो बच्चों को बस ध्यान दिलाना है. बाकी
वो देख भी रहे हैं अपने आप, दे ऑब्जर्व एंड दे लर्न। तो वो एक बेसिक चीज है जो बच्चों के साथ अपने को ध्यान दिलानी है। फिर धीरे धीरे इट गोज टू कि बच्चा खाना कहाँ से आया, कौन ला के दिया। चालू तो मम्मी जी से ही होता है कि मम्मी जी आपको खाना बना के दी। उसके बाद का प्रोसेस कि फार्मर्स जो खेती की है उनका आ गया। देन इट गोज टू होल अस्तित्व कि जब ये व्यवस्था है तब हम करेक्ट। तो ये 5th क्लास तक का हमारा सिलेबस है जिसको देते हैं बच्चों को। मैं ये इसको इसमें इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई पेरेंट बात भी करे ना अपने बच्चे से तो उनकी एज ग्रुप के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी जाए। करेक्ट। अब नर्सरी में बच्चा मून भी देख रहा है और नर्सरी में बच्चा प्लैनेट्स के बारे में भी रीड किया, एनिमल्स के बारे में भी, पर अभी जो उसको जाना चाहिए वो बस ये है कि वो चांद देखा, चांद कहाँ पे है और दिखाने वाला कौन है। मम्मी जी है। करेक्ट। तो वो मम्मी जी की इंफॉर्मेशन अभी जरूरी है। चांद की इंफॉर्मेशन बताएंगे पर वो फिफ्थ या फिफ्थ के बाद। करेक्ट। वी डोंट एक्सपोज देम टू एवरीथिंग, एक्चुअली नॉट 5th और 3rd से वैसे चालू हो जाता है प्लैनेट्स का, पर जितनी इंफॉर्मेशन उसकी उस एज में जरूरी है उतनी दी जाए। तो आई थिंक बच्चे का बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं हो कि हम आंसर इतना ज्यादा कर दे रहे कि वो ले ही नहीं पाए उसको। हम आंसर कर रहे हैं तो उसका आंसर भी उसकी एज के हिसाब से एकदम एप्ट डाइजेस्ट कर पाए एकदम। तो मतलब पेरेंट्स कोशिश भी कर रहे हैं इस चीज की, नो डाउट बहुत अच्छा एफर्ट करते हैं और हर पेरेंट कोशिश करता है कि मैं बेस्ट दूं अपने बच्चे को। उसका बस थोड़ा सा डायरेक्शन आई थिंक ये हो जाए कि हम उनके हिसाब से कर लें, मैं थोड़ा इजी कर दे लाइफ उनके लिए भी अपने लिए भी। सो इससे मुझे ये समझ में कि आप बाय डिफॉल्ट ना जैसा ध्यान दिला रहे हैं उससे उनमें बाय डिफॉल्ट ग्रेटफुलनेस आ ही जाएगा। एग्जैक्टली, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। या आई मीन हम क्या एडल्टहुड में अभी ना ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाते हैं जिसमें हम फोर्सफुली कुछ सोच के लिखते हैं, बट वो एक लेवल के बाद अंदर जाता नहीं है। ये इनहेरेंटली अंदर से आ रहा है, मतलब जैसे किड्स आर a being who want to be, तो ये अंदर से जब being से वो आता है तो अब आपको gratefulness practice नहीं करनी है, आप पूरे existence को लेकर you are grateful and makes sense. That's wonderful and I think it was nice having you both and I think आप फिर से आते तो ये पूरा education and इसका पीछे जो idea and thought है उस पे भी हम और अच्छे से बात कर सकते हैं because I'm sure people would want to know more about it. I would love to talk about it and we love being here. Yeah, definitely. ठीक है, so we can wind up with that and thank you so much. Thank you so much. Yes.